Welcome to the class, dear students. Today we'll be dealing with the topic of challenges in international business. This is the last topic of Unit 1 for this subject. Till now, we have understood what is international business, what is the nature of international business. We have also understood the significance of international business. We have also understood drivers of international business, players in international business. Now, MNCs, we have read about MNCs, TNCs, international corporation, what is the difference between them. Now, we have also understood about home country and host country, how the coming of MNCs into the host country benefits host country, and how does it benefit home country, what are the advantages and disadvantages for both home as well as host country. We have also understood in deep about the topic of globalization, the historical development and of globalization, whether there was globalization in around 5,000 years or not, what was the nature at that time. We, before coming to today's topic, we have also covered the strategies in globalization. So almost we have covered basics of international business, and by now you must have understood the importance of international business. Therefore, and also how in historical sense also through globalization, international business has always took place. It's not a new phenomena, right? But after understanding that how important is international business, we are also conversant with this fact that it is not an easy job to conduct international business. There are many challenges, right? So one by one, we'll try to see what kind of different challenges the corporations face, the government face when they are actually conducting the international business globally. So coming to the topic of challenges of international business, let me share with you the slides. Right. So I hope now everybody will be able to see the slides. So I have enumerated almost 11 different challenges that corporations or governments face when they are actually conducting international business. And one by one, we'll understand what are these challenges and what are the issues involved in these challenges, right? So first is foreign laws and regulation. Second is international company structure. Third is international accounting. Fourth challenge which I have written down is cost calculation and global pricing strategy, universal payment methods, currency rates, choosing the right global shipment method, communication difficulties and cultural differences, political risks, supply chain complexity and risk of labor exploitation, and of course, the worldwide environmental issues, right? So let's come to the first challenge, which is foreign laws and regulations. You see, whenever a company goes abroad and tries to conduct some business, it has to follow the law of that land, wherever it has gone to conduct the business. तो हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, कुछ इकोनॉमिक लॉज होते हैं, कुछ वहाँ के सोसाइटी के हिसाब से लॉज फ्रेम किए गए होते हैं, और उसी फ्रेमवर्क में सारी कंपनीज को बिजनेस कंडक्ट करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जो है चाइना की बात करते हैं, तो इनिशियल डेज में अगर कोई फॉरेन कंपनी चाइना में जाती थी, या इवन फॉर दैट मैटर इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती थी या चाइना में जाती थी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वहाँ पे एक रूल जनरली जो है गवर्नमेंट लगाती थी कि कोई भी फॉरेन एमएनसी जब उनकी कंट्री में आएगी तो वो स्टैंड अलोन या अपने आप अपना बिजनेस नहीं करेगी, वो किसी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी और फिर वो अपना बिजनेस वहाँ पे कंडक्ट कर सकती है. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते थे. उसमें से एक प्राइमरी रीजन ये होता था
कि लोकल कंपनी भी इंटरनेशनल या फॉरेन कंपनी या एमएनसी की टेक्नोलॉजी को देखेगी, समझेगी, सीखेगी और उससे उसके लोकल कॉम्पिटेंसी भी इंक्रीज होगी। तो हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं और जब बाहर की कंपनीज जो है उस कंट्री में जाती है बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ के लॉज को वहाँ के लॉज को, लोकल लॉज की उस कंपनी को बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी जो है वो उस कंट्री में बिजनेस कर सकती है। और अगर इन केस लॉज की समझ नहीं है या समझ होने के बाद भी जो है उन लॉज का जो है आप सही से उन लॉज को आप सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उसमें आप कई बार जो है कंपनीज को केसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, लीगल केसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो फ्रॉम टैक्स लॉज टू कल्चरल लॉज टू लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में हमको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो बाकायदा जो जो कंपनीज की लीगल टीम होती है वो उन लॉज को पढ़ती है और उन लॉज के हिसाब से जो है उस कंट्री में बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। तो फ्रॉम टैक्स इम्प्लीकेशन थ्रू टू ट्रेडिंग लॉज, navigating legal requirement is a central function for any successful international business. Eligibility to trade is a significant consideration, as are potential tariffs and the legal costs associated with entering new market. तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंट्री में कितना टैक्स पे करेंगे, क्या वहाँ रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भी जो है कोई क्लॉज है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन जो है 2000, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको, बहुत ही रीसेंट एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ। वोडाफोन जो है इंडिया में एंटर करती है। वोडाफोन यूके की कंपनी है और वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 और समथिंग इसके आसपास जो है एक रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाती है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जिस टाइम से जो वोडाफोन जो है कंट्री में आती है उस टाइम से उसको वो टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो ये अगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टैक्स लॉ बनाती है तो वोडाफोन अगर जो है इस लॉ को जो है फॉलो नहीं करता है तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिट्रोस्पेक्ट केस जो है वोडाफोन पे लीगल केस कर सकती है और उससे वो टैक्स थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट है उसके थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है और उससे टैक्स ले सकती है। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे लॉज होते हैं, चाहे वो टैक्स के रिगार्डिंग हो, चाहे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग के रिगार्डिंग हो। तो इस तरह के जो भी लॉज होते हैं उस कंट्री के उसको बहुत अच्छे से समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये काम करना होता है। तो फॉरेन लॉज और रेगुलेशंस की समझ बहुत ही प्राइमरी चैलेंज होता है जो हर इंटरनेशनल बिजनेस फॉलो करता है, जो उसको जो है वो फेस करना पड़ता है, सॉरी, ठीक है। तो वो जो है फॉरेन लॉज एंड रेगुलेशंस का जो चैलेंज होता है उसको इफेक्टिवली समझ पाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर उस कंपनी की लीगल टीम एक्सपर्ट नहीं है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तो इंटरनेशनल बिजनेस वो फेल हो सकता है उस कंपनी का, राइट। नेक्स्ट बिग चैलेंज है इंटरनेशनल कंपनी स्ट्रक्चर। तो कंपनी के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्या वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में फंक्शन करेगी, क्या वो जो है सेंट्रलाइज्ड वे में फंक्शन करेगी। तो कंपनी के जितने भी आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन हो सकता है, किस टाइप का स्ट्रक्चर जो वहाँ फॉलो हो सकता है, तो वो सेंट्रली उसका हेडक्वार्टर जो है उसके होम कंट्री में होगा कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है होस्ट कंट्री में दी जाएगी। तो इस तरह के जो बहुत जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं होते हैं। तो कंपनी अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटजिक गोल्स को देखते हुए जो है उनको उन सारे इंटरनेशनल कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिसीजन लेता है। अगर जो है इन केस कंपनी के जो है लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से जो है कंपनी का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया गया है तो कंपनी के जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में बहुत इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम रंग ऑफ द लैडर जो है ट्रांसफ़र होने में बहुत टाइम लग सकता है और डिले हो सकता है और उसकी वजह से जो है कंपनी के प्रोडक्ट डिलीवरी में भी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब तक जो है क्लियरिटी नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा और कौन डिसीजन मेकिंग होगा, फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी, होम कंट्री में होगी कि होस्ट कंट्री में होगी, तो अगर इस तरह के डिसीजंस क्लियर नहीं हैं और जो है
जिस कंट्री में बिजनेस करने गए हैं, जिस कंट्री में जो है बिजनेस करने जो है कंपनी गई है, वहाँ के रूल्स एंड लॉज के हिसाब से जो है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म किया गया है, तो फिर जो है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, उस कंपनी के लिए पर्टिकुलरली हो जाता है। नेक्स्ट जो मेजर चैलेंज है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है आपको पता होगा कि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी, बैलेंस शीट प्रिपरेशन वगैरह जो है हमारे अकाउंटिंग से जो है हमको तैयार करनी होती है। वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी जो है हम लोग जो है अकाउंटिंग मेथड से जो है करेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। टैक्स कितना देना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे अकाउंटिंग मेथड से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अकाउंटिंग स्ट्रेटजी जो है इज अ की टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू and the location where your business is registered can impact your tax liability. Mitigating the risk of multi-layer of taxation makes good business sense for any organization trading abroad. Being aware of tax treaties between countries where your business is trading will help to ensure you are not paying double taxes unnecessarily. तो टैक्सेस जो हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनको एग्जैक्टली जो है इंटरनेशनल अकाउंट, जिस भी कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं कि कहाँ पे आपने कंपनी को रजिस्टर कर रखा है, उस कंपनी जहाँ पे आपने रजिस्टर कर रखा है वहाँ पे टैक्सेस के क्या लॉज हैं, क्या आपको जो है ज़्यादा टैक्स तो नहीं देना है, क्या कंपनी रजिस्टर करने के लिए या प्रॉफिट जितना जो है कंपनी अर्न करती है उसका कितना पोर्शन टैक्स में चला जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा आपके पास कितना आएगा, ये सारी चीज़ें जो है अगर जहाँ पे आप कंपनी रजिस्टर करते हैं वहाँ के हिसाब से जो डिसाइड होती है। और अगर ये जो चैलेंज है आपको, ये एक मेजर चैलेंज है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो कोई देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो है, कंपनीज के ओनर किसी और कंट्री के होते हैं मगर वो रजिस्टर अपनी कंपनी को किसी और कंट्री में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने जो है, जो इंडियन बॉर्न सीईओज और ओनर्स हैं उसके, मगर उन्होंने अपनी कंपनी को सिंगापुर या दूसरी टैक्स हेवन कंट्रीज में रजिस्टर कर रखा है। टैक्स हेवन का मतलब सिर्फ गलत ही नहीं होता है, टैक्स हेवन से यहाँ पे मतलब है कि जिन कंट्रीज में जो है टैक्स को लेके जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं है, या बहुत ज़्यादा टैक्सेशन जो है कंपनीज का प्रॉफिट के बाद नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो जिनके ओनर्स इंडियंस हैं मगर उन्होंने सिर्फ अपने टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए अपनी कंपनी को दूसरे कंट्रीज में रजिस्टर किया है। तो ये आप गूगल करके पता कर सकते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मेजर कंपनीज इंडिया की हैं जिन्होंने अपने आप को इंडिया में ना रजिस्टर करके दूसरी कंट्रीज में कर रखा है। तो अगर इन कंपनीज के जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं, अगर इनको जो है जिस कंट्री में उन्होंने रजिस्टर कर रखा है वहाँ के टैक्स लॉस के बारे में अच्छे से नहीं पता है, या इंडियन कंडीशंस के या जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के टैक्सेशन के हिसाब से नहीं पता है, तो वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से भी जो है उनको बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या अगर जो है उन टैक्स लॉस को समझने के बाद भी अगर उनसे कुछ मेजर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको रेक्टिफाई करना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका जो है इम्पॉर्टेंट चैलेंज विच कॉस्ट कैलकुलेशन इन ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो जिस मार्केट में आप जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए वहाँ पे आप प्राइसिंग क्या कैसे करेंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, उसके बारे में भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइसिंग करने से पहले जाहिर सी बात है कि आपको जो है अपने प्रोडक्ट की या जो प्रोडक्ट होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उसके कॉस्ट के बारे में जो है आपको क्लियर होना पड़ेगा कि कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अगर आप कॉस्टिंग जो है अपने प्रोडक्ट की जो है बहुत इफेक्टिवली कर पा रहे हैं तभी आप प्राइसिंग भी उसकी जो है बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अगर कॉस्ट कैलकुलेशन और प्राइसिंग स्ट्रेटजी में जो है आपके मेजर गैप है और आप सही से कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं या गलत तरीके से आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो जा रही है तो आपके प्रोडक्ट की सेल पे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है और प्रोडक्ट की गलत प्राइसिंग की वजह से आपको मेजर कॉस्ट सेल्स में जो है इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो जिस रीजन में आप जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हाई परचेजिंग पावर वाली कंट्रीज में जो है अपना प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं तो
तो वहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है ज़्यादा रख सकते हैं। मगर आप अगर डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए जा रहे हैं, मगर आपने प्राइसिंग अपनी जो है उसी स्टैंडर्ड की रखी हुई है जो कि जो है आपको हाई पेइंग कंट्रीज़ में या हाई परचेजिंग पावर वाली कंट्रीज़ में जो है आपने की हुई है, तो वो जाहिर सी बात है वो मेजर मिसमैच होगा, वो गलत प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी और आपका प्रोडक्ट जो है उस कंट्री में, स्पेशली लीस्ट डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में सेल नहीं होगा। तो वो आप समझ लीजिए कि वो एक मेजर प्रॉब्लम होगी और इस फैक्टर को अगर आपने ढंग से हैंडल नहीं किया तो एक मेजर चैलेंज होगा और कंपनी जो है आपकी मेजर सफ़र कर सकती है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम लोग को देखना है यूनिवर्सल पेमेंट मेथड। तो ये बहुत ही मेजर एक चैलेंज है कि जो भी आपका कस्टमर होगा उसको आपको ऑप्शन देना है कि वो किस तरीके से जो है पेमेंट कर सकता है। तो जैसे आप आज की डेट में जो है अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपके पास जो है चाहे तो आप डेबिट कार्ड से पे कर लीजिए, चाहे क्रेडिट कार्ड से पे कर लीजिए, चाहे आपके पास गूगल पे का ऑप्शन रहता है, चाहे आपके पास पेपाल का ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से आपके पास जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं, चाहे आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो एक अच्छी कंपनी की एक पहचान होती है, इंटरनेशनल बिजनेस करने वाली एक कंपनी जो है उसकी एक पहचान होती है कि अपने कस्टमर को वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करे जिसके थ्रू वो पेमेंट इजीली कर सकता है। से फॉर एग्जांपल कि अगर वो डिजिटल पेमेंट करना चाहता है तो उसके भी मल्टीपल ऑप्शंस जो है कंपनी को देने चाहिए और सेफ ऑप्शन देने चाहिए जिसके थ्रू वो पेमेंट कर सकता है। तो डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड्स एंड ensuring secure processing must be central consideration for businesses who seek to trade internationally। तो इस बात को जो है कंपनीज को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए और कौन सा पेमेंट मेथड यूज करना है ये डिसाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, कस्टमर की जो पेमेंट्स हैं वो इजीली सेफली जो है कंपनी तक पहुंच जाए, कोई उसमें जो है मेजर फॉल्ट या डिले ना देखने को मिले और कोई बहुत ज़्यादा जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है उस आपको जो डेटा फीडिंग जैसी चीज़ ना हो कि जो है बहुत ज़्यादा उसमें जो इनपुट्स मांगे जा रहे हैं। तो इजी होना चाहिए यूज़ करने के लिए। तो कौन सा जो है पेमेंट मेथड जो है यूज़ करेगा कंपनी जो है उसको ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, ये एक बहुत मेजर चैलेंज होता है डिसाइड करने के लिए। तो मल्टी चैनल पेमेंट्स सपोर्ट मीन्स बिजनेसेस कैन लेट देयर कस्टमर्स चूज टू पे हाउएवर दे वांट, व्हेनेवर दे वांट। Business can accept in person, telephone and online payment. That's the philosophy of universal payment gateway. तो यूनिवर्सल पेमेंट गेटवेज जो है इंश्योर करते हैं कि कस्टमर जो है कभी भी किसी भी समय किसी भी तरीके से जो है इजीली वो डिजिटल पेमेंट कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में। तो एक्सेप्टिंग वेल नोन ग्लोबल पेमेंट मेथड थ्रू कंपनीज लाइक वर्ल्ड पे as well as accepting local payment methods such as JCB in Asia or Yandex Money in Russia. All these are the very good options which companies can explore. तो आजकल बहुत सेफ मेथड्स आ गए हैं और इंक्रिप्शन पॉलिसी और इंक्रिप्शन जो है डेटा का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ईजिली जो है डेटा की हैकिंग नहीं हो सकती है। तो सिक्योर मेथड यूज़ करना चाहिए, ट्रस्टेड मेथड यूज़ करना चाहिए और ऑलरेडी जो मेथड्स चले आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी टेस्टेड मेथड्स हैं उनको जो है यूज़ करने का ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो होता है जिसकी स्टडी और जिसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज करेंसी रेट्स, राइट। तो करेंसी रेट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम दूसरी कंट्री में अपने कंपनी को जो मान लीजिए कि हमारी कंपनी है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो वहाँ से जो पेमेंट की बात की जाएगी तो वहाँ से पेमेंट जो है हो सकता है कि डॉलर्स में हो रहा हो या कोई भी जो बीच में जो हमने एक्सेप्टेबल करेंसी है उसमें जो है उसका पेमेंट हो रहा होगा।
तो while price setting and payment methods are major consideration, currency rate fluctuation is one of the most challenging international business problem to navigate. Monitoring exchange rates must therefore be central part of strategy for all international business. तो इस बात को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझें। जैसे मान लीजिए कि इंडिया आईटी सेक्टर में जो भी एक्सपोर्ट करता है उसकी पेमेंट वो डॉलर्स में लेता है। तो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो इंडिया का जो है आईटी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जाता है वो यूएस में जाता है और यूरोप में जाता है, राइट। तो यूएस में अगर जो है मान लीजिए कि $1 70 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। $1 अगर 70 रुपीज़ के बराबर है तो अगर जब हम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई प्रोडक्ट $1 का है, अगर वहाँ पे हमने बेचा तो यूएस हमको 70 रुपीज़ देगा, राइट। सिमिलरली अगर जो है यूरोप में हम देखते हैं कि मेजर हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूरोप में अगर जाता है तो वहाँ पे जो है हमारा 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड अगर समझ लीजिए 80 रुपीज़ के बराबर है, तो अगर हम प्रोडक्ट वहाँ पे 1 पाउंड में बेचते हैं, ठीक है, तो 1 पाउंड में बेचते हैं तो हमको 80 रुपीज़ मिलता है। सेम प्रोडक्ट अगर हम यूएस में सेल करते हैं और $1 में तो हमको 70 रुपीज़ मिलता है, और अगर हम यूरोप में सेल करते हैं 1 पाउंड में तो हमको 80 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। तो कंपनी को जो है क्यों रेट फ्लक्चुएशंस के बारे में पता होना चाहिए और उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हिस्टोरिकल पैटर्न और करंट पैटर्न को स्टडी करते हुए, जो कि जनरली हम लोग फॉरेक्स मार्केट में स्टडी करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में प्राइस जो है 70 रुपीज़ चल रहा है $1 का, और वही एक प्रिडिक्शन है कि कल किसी न्यूज़ की वजह से वही डॉलर का रेट 74 या 75 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम आज एक्सपोर्ट करने की बजाय 2 दिन बाद एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी गुड का, उसी सेम प्रोडक्ट का प्राइस हमको जो है 70 ना मिलकर 75 मिलेगा, यानी कि हमको ₹5 का जो है फायदा 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक्सपोर्ट करने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, बार बार जो हम देख रहे हैं कि जो है डॉलर का और रुपीस का प्राइस जो है कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। मान लीजिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का जो है कोई फैक्टर जो है प्ले कर रहा है और उसकी वजह से जो है करेंसी रेट्स में चेंज आ रहा है, तो अगर हम 2 दिन बाद उसको एक्सपोर्ट करें तो हो सकता है कि जो है हमको जो है ज़्यादा जो है हमको प्रॉफिट एक्सपोर्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे कि जो है रुपीस का जो है डॉलर के अगेंस्ट में गिरना अच्छा है कि खराब है, एक्सपोर्ट वो टॉपिक अलग है। और यहाँ पे बस मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी कंट्रीज होती हैं उनके लिए जो है अगर रुपीस फॉल करता है, यानी डॉलर के अगेंस्ट में रुपी फॉल करता है, यानी 75 से 80 हो जाता है या 60 से 70 हो जाता है, तो उनके लिए फायदे की चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और जब वो एक्सपोर्ट करेंगी तो जब रुपी फॉल होता है तो $1 अगर उनको पेमेंट होता है तो $1 के बदले में उनको ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं, राइट। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है कि इस बात को ये स्टडी करें कि करेंसी रेट्स जो है किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक। इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ के लिए भी ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है इसको मॉनिटर करना, क्योंकि अगर जो है रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो रहा होता है, ठीक है, या कोई ऐसा फैक्टर जो है मान लीजिए कि हो सकता है जिसकी वजह से डॉलर रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत हो रहा होता है या जो है स्ट्रांग हो रहा होता है, यानी कि 70 से 65 या 65 से 60 हो रहा होता है, तो जो है इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज को थोड़ा वेट करना चाहिए और वो आज की बजाय 2 दिन बाद सामान को इंपोर्ट करें, अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करें या गुड को इंपोर्ट करें, तो उनको सस्ते में वही सामान बाहर से मिल जाएगा। तो करेंसी रेट्स को जो है, देखिए बहुत छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, मगर ये करेंसी रेट्स की स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मगर ये एक इंटरनेशनल बिजनेस करने वाली कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसको समझ पाना। क्योंकि अगर जो है करेंसी रेट्स की मूवमेंट को बहुत अच्छे से जो है स्टडी करके कंपनी की स्ट्रेटजी कब जो है एक्सपोर्ट करना है, कब इंपोर्ट करना है, इसमें इसको जो है इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो कंपनी बहुत मेजर लॉसेस से बच सकती है या बहुत मेजर प्रॉफिट उसको हो सकता है।
तो एक बहुत बड़ा चैलेंज करेंसी रेट्स को स्टडी करना हो सकता है और उसको अपनी पॉलिसी में कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट जो चैलेंज है वो होता है चूजिंग द राइट ग्लोबल शिपमेंट मेथड। तो potential of online sales presents a huge international business opportunity for retailers in 21st century. But finding reliable, fast and cost-effective shipment and distribution methods can be a difficult balance in some market, depending on the volume and destination of your shipment. Will you send by land, sea, air or combination? तो हमको अपने सामान को, गुड्स को जो है किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्री में, वो एक बहुत मेजर डिसीजन होता है। तो मैंने आपको जो है जब ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो है समझाया था कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो है लैंड रूट के थ्रू और सी रूट के थ्रू होता था। तो पहले लैंड रूट से ही शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे सी रूट का जो है डिस्कवरी होती है, सी रूट के थ्रू होता है, क्योंकि सी रूट से जो है बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो सकता है। लेकिन आज की डेट में हम लोग देखें तो हमारे पास लैंड रूट, सी रूट और एयर रूट, ये तीनों ही रूट अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस चाहे एक्सपोर्ट का हो चाहे इंपोर्ट का हो वो कर सकते हैं। तो कई बार हमारे लिए लैंड रूट बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, कई बार सी रूट बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, कई बार हमारे लिए एयर रूट बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, और कई बार जो है ये तीनों चीज़ अलग अलग पर्सपेक्टिव में निगेटिव इफेक्ट भी डालती है। तो कंपनी के लिए ये डिसाइड करना कि किस मोमेंट पे हमको जो है कौन सा जो है शिपमेंट मेथड यूज़ करना है, लैंड का, सी का या एयर का यूज़ करना है, या क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करना है दोनों का, तीनों का, कि कुछ पोर्शन हमको लैंड के थ्रू भेज देना है, कुछ पोर्शन हमको जो है सी के थ्रू भेज देना है, कुछ पोर्शन हमको एयर के थ्रू भेज देना है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि इमरजेंसी केसेस अगर कुछ हैं, ठीक है, इमरजेंसी के केस में हमको वैक्सीन जो है दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करनी है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप शिप के थ्रू जो है उसको नहीं करना पसंद करेंगे। आप जहाँ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप एयर रूट के थ्रू उसको एक्सपोर्ट करने का सोचेंगे। तो इस तरीके से जो है अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग शिपमेंट मेथड जो है कंपनी चूज करती हैं, राइट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज एंड कल्चरल डिफरेंस। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होता है दूसरे कंट्रीज़ में जो है वहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड करना और प्रॉपरली कम्युनिकेट करना अपने आइडियाज़ को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी फीलिंग को, जिस भी कंट्री में जो है आप गए हैं, अपने जिस भी प्रोडक्ट को आप ले गए हैं उसका राइट मैसेज को जो है कस्टमर के जो है पोजीशनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत मेजर चैलेंज होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए यूएस के और इंडिया के कल्चर में आप मेजर डिफरेंस इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई स्लीपर की कंपनी है, स्लीपर्स और शूज़ और फुटवेयर्स की कंपनी है, वो अगर यूएस में जो है अपने सामान को, इंडिया की कंपनी है और वो यूएस में जो है अगर एक्सपोर्ट करती है, तो उसके पास इतनी फ्रीडम या लिबर्टी होती है कि वो चाहे तो शूज़ या स्लीपर्स पे कोई भी हिस्टोरिकल फिगर का इमेज बना सकती है, राइट। अपने स्लीपर्स पे या शूज़ पे वो किसी भी हिस्टोरिकल फिगर या माइथोलॉजिकल फिगर का जो है गॉड्स गॉडेसेस का जो है इमेज बना सकती है अगर वो यूएस में उस अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है। मगर अगर इंडिया में जो है कोई कंपनी ये काम करना चाहती है तो आप समझ सकते हैं कि जो है इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ के कल्चर में इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि आप गॉड्स या गॉडेसेस के फेस या इमेज को जो है आप स्लीपर्स पे या शूज़ पे रिफ्लेक्ट कर सकें। तो अगर आप जो है यूएस की मेंटालिटी के हिसाब से या वहाँ के कल्चरल मेंटालिटी के हिसाब से इंडिया में अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके पब्लिक के सामने जो प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल फेस अ बैकलैश, और जब आप बैकलैश फेस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कंपनी को अल्टीमेटली यू हैव टू वाइंड अप and there will be a huge loss of business when it comes to India for that particular company. तो उस कंपनी को इंडिया में जो बहुत मेजर लॉस होगा, और वो मेजर लॉस केवल इस वजह से है बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्री, और इट वाज नॉट एबल टू अप्रिशिएट द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ particular country in which it was doing the business, right?
तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज एंड कल्चरल डिफरेंसेस ये बहुत मेजर चैलेंज होता है। तो ये अगर जो है कोई इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए कोई कंपनी जा रही है तो उसको इन सारे बातों का भी बहुत स्ट्रांगली जो है अपने स्ट्रेटजी में, अपने पॉलिसीज में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मैकडी है, तो मैकडी यूएस कंपनी है और जब वो इंडिया में आती है तो जाहिर सी बात है वो बीफ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या बर्गर्स इंडिया में सर्व नहीं करती है, जबकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज में वो उसका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, एक बहुत ही मेजर प्रोडक्ट है। बीफ बर्गर जो है वहाँ पे बहुत मेजर प्रोडक्ट, मगर इंडियन कंडीशंस को या इंडियन कल्चर को जो है वो अप्रिशिएट करते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसकी सेंसिबिलिटीज़ को समझते हुए मैकडी ने यहाँ सक्सेसफुली जो है उस प्रोडक्ट को कभी भी जो है knowingly लॉन्च नहीं किया, और दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज एबल टू कंडक्ट देयर बिजनेस वेरी सक्सेसफुली इन इंडिया। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो पॉलिटिकल रिस्क है। तो पॉलिटिकल रिस्क का असेसमेंट करना बिफोर स्टार्ट ऑफ द बिजनेस और इवन व्हेन द बिजनेस इज स्टार्टेड इन ड्यू कोर्स ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, पॉलिटिकल रिस्क को जो असेस करना वो बहुत ही मेजर चैलेंज होता है इंटरनेशनल बिजनेस करने वाली कंपनीज के लिए। एन ऑब्वियस रिस्क फॉर इंटरनेशनल बिजनेस इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी। कंट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स that may offer considerable opportunities for expanding global business may also pose challenge which more established markets do not. Before considering expansion into a new or unknown market, a risk assessment of political and economic landscape is critical. तो इस बात को हम बहुत अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कंट्रीज स्पेशली इमर्जिंग कंट्रीज होती हैं और वहाँ पे बिजनेस करने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, मगर जनरली ये भी देखा गया है कि वहाँ पे जो पॉलिटी होती है, पॉलिटी वहाँ की काफ़ी अनस्टेबल होती है। स्पेशली अगर आप जो है साउथ, स्पेशली इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, कीनिया का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, इजिप्ट का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे जनरली देखने को ये मिलता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बिजनेस तो बहुत होती हैं, मगर वहाँ पे जो पॉलिटी है, वहाँ की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो जो है बहुत स्टेबल नहीं होता है। यानी कि वहाँ पे अक्सर जो है गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी जो है थ्रू मिलिट्री कू और थ्रू अदर रीजंस वहाँ पे हटा दी जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी फ्रेम की गई होती हैं वो भी जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है उसको स्क्रैप कर देती है, पुरानी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज को, और नई पॉलिसीज लेके आती है। तो ये बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो है बहुत मेजर हर्डल होता है बिजनेस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस करने कोई कंपनी जाती है दूसरे कंट्री में जो अपने बिजनेस को सेटअप करती है, तो वो जनरली ये चाहती है कि जो भी रूल्स जो है बने हुए हैं इकोनॉमी को बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वो स्टेबल रहें, वो बार बार जल्दी जल्दी ना बदले जाएं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर रिलेटेड हो, वो बार बार फ्रिक्वेंटली ना चेंज किया जाए, क्योंकि बार बार जब रूल्स चेंज होते रहते हैं तो फिर कंपनीज को जो है एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अपने रियल फोकस जो उसका होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और कस्टमर को राइट सर्विस देना, उससे उसका दिमाग जो है थोड़ा हटता है, और अननेसेसरी इश्यूज जो होते हैं वो जो बार बार पॉलिसीज चेंज होने की वजह से जो क्रिएट होते हैं उसमें उसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ और रिसोर्स लगती है। तो पॉलिटिक, और दूसरी बात ये होती है कि जिस कंट्री में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फुल टर्म नहीं कर पाती, जैसे 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट हुई मगर पता चला कि एक ही साल में गवर्नमेंट गिरा दी गई और दूसरी तीसरी, एक 5 साल में 3 गवर्नमेंट्स बन रही हैं, जिसका एग्जांपल जो है इंडिया में पर्टिकुलरली जो है 1995 से लेकर 1994 से लेकर 1999 तक देखा गया था। तो वो बहुत मेजर हर्डल होता है किसी भी जो है फॉरेन कंपनी के लिए इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। तो कंपनीज जनरली वो कंट्री या वो रीजन प्रेफर करती हैं जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट्स होती हैं, जहाँ पे स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जहाँ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिसी नहीं देखने को मिलता है, और जहाँ पे वो अपना ब्रेन, अपना रिसोर्स बिजनेस करने में प्रॉपरली लगा सकते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट है सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन। तो सप्लाई चेन बहुत मेजर इशू है। ये सप्लाई चेन का मतलब आप लोग को समझना पड़ेगा कि सप्लाई चेन का मतलब होता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल
till the end of providing the product or service to the customer. ये पूरी जो chain होती है या पूरा link होता है from sourcing of raw material from till manufacturing, from manufacturing to supply of goods or services to the customer. तो ये जो पूरी chain होती है that is known as supply chain. तो supply chain अपने में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली अगर लोकल बिजनेस नहीं है. लोकल बिजनेस तो फिर भी उसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस जहाँ पे सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है डिफरेंट कंट्रीज से होता है, डिफरेंट रीजन से होता है, सोर्स कहीं और से किया जा रहा है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कहीं और किया जा रहा है, और जो है सर्विस या गुड कहीं किसी और थर्ड कंट्री में जो है सप्लाई किया जा रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि जो है सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा होती है. ठीक है. और इस पूरे सप्लाई चेन की स्मूथ फंक्शनिंग में जो भी लेबर एम्प्लॉयड है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी भी पार्ट में किसी भी पूरी सप्लाई चेन में जितने भी लेबर इन्वॉल्व हैं कहीं पे किसी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन जो है हो रहा हो. तो इन सारी चीज़ों को जो है मैनेज करना इतना कॉम्प्लेक्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए कि अगर सप्लाई चेन में चाहे अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम कहीं भी जो है कोई मेजर रोड ब्लॉक या प्रॉब्लम या बॉटलनेक दिखता है तो पूरी चेन में जो है उस बॉटलनेक का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और अल्टीमेटली कंपनी की इमेज पे रिफ्लेक्शन आता है और कस्टमर को सर्विस टाइम से प्रोवाइड नहीं होने की वजह से कंपनी ने जो भी इन्वेस्ट किया होता है उसका इन्वेस्टमेंट उसमें हैवी लॉस उसको फेस करना पड़ सकता है. तो सप्लाई चेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको जो है प्रॉपरली स्टडी करना, बॉटलनेक्स को रिमूव करना, ये एक, और एक्सप्लॉयटेशन लेबर का जो होता है उसको जो है प्रॉपरली हैंडल करना, वो एक मेजर चैलेंज है जो अगर इंटरनेशनल बिजनेस प्रॉपरली उसको हैंडल कर लेता है देन दैट बिकम्स अ सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस. उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल इश्यूज पे. तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इश्यूज पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेथड नहीं चुना फॉर प्रोडक्शन और फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज तो फिर जो है हम लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुली इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस के जो है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके एम्बिट में जो है कंपनीज को जो है अपने प्रोडक्शन करना चाहिए और वो सारी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि जो है पोल्यूशन ऑफ वाटर, एयर और अदर रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन ना हो और हम एक ऐसे इन्वायरमेंट और एक ऐसे सोसाइटी की तरफ बढ़े जिसमें जो है हम लोग एक सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकें और सिर्फ ऐसा ना हो कि आज की ही डेट में हम बिजनेस करने के लिए बने हों और आने वाली जनरेशन्स को हम ये बिजनेस ना ट्रांसफर कर पाएँ. तो वर्ल्ड वाइड जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज को जो है टेक केयर करते हुए इंटरनेशनल बिजनेस करना एक बहुत मेजर चैलेंज होता है, मगर ये मेजर चैलेंज जो है सारे कंट्रीज़ को, सारे कंपनीज़ को और सारे एम्प्लॉयज़ को मिलके ज़रूर जो है फेस करना है और इसको सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि इस चैलेंज से हम लोग जो है निकल पाएँ और प्रॉफिट के साथ जो है हम लोग जो है कंपनी को प्रॉफिट करते हुए जो है इन चैलेंजेस को फेस कर पाएँ. तो ये मेजर चैलेंजेस हैं जो कि जो है सारे इंटरनेशनल बिजनेस करने वाली कंपनी फेस करती हैं और विद दिस योर फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटेड. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस lecture. Thank you very much.